जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ गुरु महाराज जी। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਲ ਪਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈंने ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਪੁੱਛ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਫਰੂਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈंने ਫਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਲੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਦੇਖੋ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਕਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਵੇਟ ਕਰ, ਹਲੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੱਕ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ, ਮੈंने ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈंने ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਦੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈंने somehow ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਫੋਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਈ। ਤੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਉਸੀ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਆਂਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖਦੀ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣੀ ਨਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰੂਪ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਓ ਜੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸਵਰੂਪ ਨਾ, ਉਸ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸਵਰੂਪ। ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਵਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਲੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਵਰੂਪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੇਮ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਨਾਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਬਟ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਪਕੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਆਲਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈंने ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਜੀਸਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਤੀ ਅੱਜ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू लॉट गुरु जी एंड वेलकम गुरु जी। शुकराना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है शनिवार वाले दिन का। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने दिन पे दिन पहले से इतने दिन बेटर कर दिए हैं कि ऐसे लगता है ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल से शुक्राना मेरे दाता का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का।
बच्चों का काम, अंकल का काम अच्छा होता चला जा रहा है। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो कि बिल्कुल बच्चे का काम बिल्कुल बंद हो गया था और मुझे नहीं पता कहाँ से उसका काम पूरा होता है। मैं तो जब काम आता है तो मैं गुरुपा को कहती हूँ आपने काम दिया, आपने ही भेजना, इसको बनवा के अपने आप देखना। दिल से लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो उसका बेटे का काम बन के चला जाता है और अपनी बेटी को भी इतनी हिम्मत बख्शी है जो बच्चों का पूरा पूरा साथ दिलवा रहे हैं। गुरुपा दिल से थैंक यू। जब मैं काम करने बैठती हूँ तो मैं अपने गुरुपा को कहती हूँ अंग संग साहिब बैठो आप साथ में, तो वही हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी काम मुश्किल है फ़िलहाल ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाना, मगर मेरे गुरुपा ने कहा तू आगे बढ़, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। तो मैं अब गुरुपा का नाम लेते ही अपने बैठती हूँ और मेरे पा ही करवाते हैं। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और इतना अच्छा खाना, सब कुछ बिना टेंशनों के लाइफ दे रहे हैं। है लाइफ में टेंशन मगर इतनी नहीं है, आती हैं गुरुपा अपने आप देख लेते हैं। वो कहते तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, तेरा प्यो बैठा हुआ है और बस मेरे प्यो बैठे हुए हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी आज शनिवार वाले दिन गुरुपा के मैसेज आते हैं, बीच बीच में नहीं भी आते और बीच बीच में आने भी लगते हैं कि मैं किसी ना किसी रूप में तेरे घर आऊँगा। कभी बटरफ्लाई, कभी मतलब कहते हैं कोई भी साधु संत आए तो उसको खाली मत भेजना। संगत जी ये मैसेज काफ़ी टाइम पहले भी आया था और फिर दोबारा आया था, और तेरे परिवार के कष्ट लेके जाऊंगा, तू पीछे मुड़ के मत देखना बस। तो संगत जी आज शनिवार वाले दिन हम लोग सो के ही उठे थे, थोड़ी देर मतलब 10 साढ़े 10 बज रहे थे, चाय वाय पी बैठी और नाश्ता दिया अंकल को और मैं थोड़ी देर लेट गई क्योंकि मेरे बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं लेटी हुई थी, बेटा उठा ही था तो बेटे बेल बजी नीचे गेट की, मेन गेट की। तो मैंने कहा देखना, बेटे से कहा देख कौन है, कहीं पापा ना बेल बजा रहे हो, कोई काम ना हो। तो उसने देखा तो कह रहा कोई वो है साधु हैं। तो मैंने कहा साधु है, मैं उठ के एकदम गई, मेरे बल्कि बैक पेन हो रहा था, मैं एकदम साधु का नाम सुनते ही गई। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं कोई भी साधु संत आए उसको खाली मत भेजना। हम लोग संगत जी 4th फ्लोर पे रहते हैं और जो कि नीचे उन्होंने किसी की बैल नहीं बजाई और गली में भी उन्होंने किसी से नहीं बोला। देखो मतलब गुरुपा ही थे, मुझे विश्वास है, और वो किसी ना किसी रूप में आए थे और 4th फ्लोर की बैल बजाई। तो मैंने बोला, मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो कह रहे कि बेटा मुझे जूते चाहिए। मैंने कहा जूते चाहिए, तो उनका एक हाथ नहीं था संगत जी। और उन्होंने ऑरेंज चोला नहीं डाला होता, उन्होंने वाइट चोला डाल रखा था और उनकी दाढ़ी थी और साइड में एक उनके थैला लटक रहा था। संगत जी जब मैंने देखा मैंने कहा मेरे मन में पता नहीं उथल पुथल, मुझे विश्वास था कि गुरुपा ही आए हैं उनके रूप में। फिर भी मैंने कहा जूते चाहिए। मैंने कहा भी देखती हूँ, मैंने स्कूल के जूते देखे, वाइट स्कूल के जूते बेटे के रखे हुए थे 8 नंबर के। तो मैंने कहा ये आ जाएंगे। मैंने उसको थैले में और एक बिस्कुट और पैसे 10 का नोट रख के दे दिया। मैंने कहा कि ये लेकर ये वाले जूते नहीं चाहिए, नीचे से ही बोले, मैं 4th फ्लोर पे थी। मैंने कहा अच्छा वो निकाल लो, मैं दूसरे देखती हूँ। कह रहे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, बच्चों के थे। तो मैंने बेटे को कहा स्पोर्ट्स शूज़ को, तो बड़ा वाला बेटा बोला मेरा कोई मत देना, और मैं नहीं, मतलब वो नहीं मानता क्या, उसके मन में ये था ना संगत जी ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है, हो भी रहा है, होता नहीं, भुगत चुके हैं हम इस चीज़ को। तो उसे लगता है कि ले जाके कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, कोई कपड़ा दे दो कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है। हम अभी इस पिछले साल इन्हीं चीज़ों से निकले हैं बाहर, तो वो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा और बहुत पैसा भी लग गया। गुरुपा जानते हैं इस चीज़ में, जो वो तो गुरुपा ने हमें इस तादार तक बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, जो ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला। दिल से थैंक यू पा। गुरुपा अभी भी कहते हैं संभल के रहो और अपना कपड़ा, मीठा चीज़ किसी की मत दी हुई खाओ। गुरुपा ने ही हमें मैसेज डाल के बोला। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो हमें बताते रहते हैं बीच बीच में कि नेगेटिव भी भारी होती है, वो हमेशा बता देते हैं। तो उसने नहीं देने दिए, जबकि उसके 2-3 जोड़ी पड़े थे।
तो मेरे छोटे वाले बेटे ने अपने नए जूते नए 1-2 बार पहने, उसने कहा मम्मी ये दे दो, वो देने भी चला गया। वो कह रहे वो बाबा बोले एक चद्दर भी दे दो कोई है। तो मैंने चद्दर फ़ोल्ड करके मेरे मशीन पे रखी हुई थी, वॉशिंग मशीन पे, मैंने वही चद्दर दे दी सिंगल। तो मैंने कहा बेटा ये, वो इतने में मैं उसको चद्दर देने वाली थी, वो इतने में नीचे जूते लेके चला गया। तो बाबा ने नहीं लिए, वो जूते भी नहीं लिए। तो वो ऊपर आया, मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहे मम्मी ये वाले भी नहीं ले रहे। तो मैंने कहा चद्दर मेरे मन में, वो इतनी देर में मैंने देखा वो आगे चले गए। संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जूते मांग रहे थे, और जो कि जूते हमारे कहते हैं ना, कोई हमारे लेके जाता है, उठा के ले जाता है मंदिर से, वो हमारी परेशानियां ले गया। समझो वो चोरी नहीं, वो हमारी परेशानी ले गया। तो संगत जी मैंने बड़े वाले बेटे को कहा बेटा दे देता। कह रहा मैं देने की बात नहीं। मैंने कहा बेटा ये गुरुजी ही साक्षात उस रूप में आए हैं जो हमारी परेशानियां जूतों के ज़रिए ले जाना चाहते थे हमारी घर की। मुझे नहीं पता संगत जी, मैं अपने मन की बता रही हूँ आप लोगों से। और कहते हैं ना जूतों की जगह जो जाता है, जूते चोरी भी होते तो कि हमारे घर का ही वो हमारी परेशानियां ले गया। मैंने गुरुपा की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुपा आप ही आए हो ना। तो मेरे मन में उन्होंने ऐसे लग रहा थॉट डाली, हाँ मैं ही आया था उस रूप में और तेरी परेशानियां ले जाना चाहता था। और मैंने फिर खाली हाथ तो फ़िलहाल भेजा नहीं, मगर मैंने जूते नहीं दे पाई, क्योंकि हमने 2 जोड़ी जूते दिखाए, उनको पसंद नहीं आए, वो नहीं ले गए और वो सीधे चले गए। संगत जी मैंने शुक्राना भी किया पीछे से, 3 बार मैंने 4 बार शुक्राना बोला, वो चले गए सीधे, वो रुके नहीं। इतने में मैंने बेटे को बोला बेटा गुरुजी आते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, ऐसे तू जूते। कह रहा मम्मी मैं देने की बात नहीं कर रहा, पहली बार तो अपने पहने हुए जूते मत दो किसी को, और तुम्हें पता है गलत भी इस्तेमाल होता है, और हम अपनी परेशानी हम दूसरों को क्यों दें। मैंने कहा तुझे पता है दूसरा कौन है? वो साक्षात गुरु रूप में ही आए थे, हमारे गुरुजी आए थे उस रूप में। मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा दिल मान रहा अंदर से। और मैं अपने गुरुपा की तरफ देखूं और खूब रोई संगत जी मैं, कि मेरे गुरुजी आए थे, और मैं उस समय पता नहीं बुद्धि ऐसी हो गई थी, ना बैठ चद्दर दे पाई और ना जूते दे पाई। मैं बहुत रोई, मैंने माफ़ी मांगी गुरुपा, पता नहीं आप अगर आए हो। और संगत जी थोड़े दिन पहले गुरुपा ने वीडियो आई थी एक इंस्टाग्राम में गुरुपा की मंदिर से, कि गुरुपा ने मंदिर में, पता नहीं मंदिर की थी, बड़े मंदिर की थी, पता नहीं कहाँ की थी, तो चोले के नीचे स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे गुरुपा ने, ब्लैक और वाइट। तो मैं एकदम मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, मैंने कहा गुरुपा, मैं गुरुपा से कह रही हूँ कि गुरुपा ये आप चोले के नीचे स्पोर्ट्स शूट क्यों डाला हुआ है, ये तो आपको जूतियाँ अच्छी लगती। मैं उनसे ये बोल रही थी, और उसी समय आज मेरे मन में ये आई कि मुझे मेरे गुरुपा ने उस चीज़ का जवाब दिया ऐसे। मतलब मुझे नहीं पता संगत जी मेरे से गलती हुई है या नहीं हुई, मुझे नहीं पता, मगर मैंने अपने गुरुपा से दिल से सॉरी बोला और बहुत रोई। मैंने कहा प्लीज़ गुरुपा अगर गलती है तो मुझे माफ़ कर दो। मगर वो बोले कि मैंने तो 2 जोड़ी जूते दिखाए थे, मगर उनको पसंद नहीं आए, वो कह रहे थे स्पोर्ट्स शूज़ ही चाहिए। और एक स्पोर्ट्स शूज़ पड़े थे, मगर उसमें फ़ीते नहीं थे, लेसिस नहीं थे, तो मैंने वो दिए नहीं। मैंने कहा बेचारे वो कहाँ लेसिस डलवाएंगे। संगत जी अगर मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब है, मगर मैं ये जानती हूँ मेरे पा ही आए थे उस रूप में। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो पता नहीं कौन सा कष्ट लेके गए हैं अपनी बेटी का और दर्शन दिए। दिल से थैंक यू सो मच, दिल से शुक्राना मेरे दाता, दिल से शुक्राना। वो कुछ खाने के लिए भी नहीं मांग रहे थे, मगर मैंने सोचा ला उनको रोटी बना, मगर वो रुकना ही नहीं चाहते, बस जूते ही मांगे जा रहे थे, जूते ही मांगे जा रहे थे। मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी जूते जो दिखाने की, उनको देने की, मगर उनको पसंद नहीं आया। दिल से सॉरी गुरुपा, अगर आप आए हो, आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई है जाने अनजाने जानबूझ के, तो उसके लिए दिल से सॉरी। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। और आपकी ब्लेसिंग देने के तरीके ही बहुत अलग हैं। दिल से थैंक यू। और अब गुरुपा का मैसेज इतना पॉजिटिव आ रहा है, मेरे मन में थी कि बड़ा सत्संग हो, मेरे पा जानते हैं, क्योंकि मकान चेंज करा। मैंने कहा गुरुपा बड़ा मकान हो जाएगा तो सत्संग ज़रूर करवाऊँगी जब आपकी रह जाओ। तो अब गुरुपा कहते हैं पेन कॉपी लेके बैठ और चाय बना के ला और लिस्ट बना, तेरे घर में 6-7 जून का मैसेज आ रहा है कि तेरे का सत्संग ज़रूर होगा। 10 जून सॉरी,
वो गुरुपा की रजा है। जब गुरुपा करवाएंगे, गुरुपा ने ही इंतज़ाम करवाना, वो गुरुपा ने ही सत्संग करवाना। दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और गुरुपा हर रोज़ कोई भी ऐसा दिन नहीं जाते जो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग ना देते हों या अपनी ब्लेसिंग दिखाते ना हों। इतनी घर में कभी कभार खुशबू आने लगती है गुलाब की। जीने में हमारी सीढ़ियों में सेकंड थर्ड फ्लोर तक खुशबू आती है संगत जी, गुलाब की बहुत आती है। और कभी कभार तो ज़्यादा ही आती है और कभी कभार कम आती है। अगर फूल भी लटके हुए हैं तो वो सूखे हुए हैं, सूखे हुए गेंदे के फूल एक आध गुलाब का फूल भी होता है, मगर सूखे हुए फूलों में तो इतनी नहीं आती जितनी ताज़ों में आती, खूब आती है। जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे संगत रहती है ना, वो गुरुजी की संगत है। वो कहती भी हैं कि आंटी आपको गुलाब के फूल की खुशबू लगती है, जीनों में आती है आंटी कभी कभार। उनको इस चीज़ का पता नहीं था, तो मैंने कहा अच्छी बात है, गुरुजी के होने का एहसास है, गुरुजी आपको होने का एहसास दिलवा रहे हैं। ये फ्रेगनेंस जब भी आती है जब गुरुजी आपके आसपास विराजमान होते हैं। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हो गए। वो गुरुजी की संगत है, मतलब फिर उनको पता नहीं था, तो बताने पे उनको समझ आई इस चीज़ का। दिल से शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो या कोई फेस्टिवल होता है या वैसे ही बड़े मंदिर जाती तो बड़ी गुरुपा के फ्रेगनेंस आती है गुलाब की, कभी मोंगरे की। और जबकि मैं इधर उधर देखती हूँ कोई गुलाब नहीं होता, मोंगरे होते हैं तो गुलाब की आती है, गुलाब की होते हैं तो मोंगरे की आती है। मतलब एक अजीब सी फ्रेगनेंस होती है। वो दिल से शुक्राना मेरे दाता का, अपने होने का एहसास दिलवाने के लिए, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखने के लिए। दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता का। और गुरुपा, अगर आपकी बेटी से आज कोई भी गलती हुई है ना, तो उसके लिए दिल से सॉरी, हर गलती के लिए दिल से सॉरी। और अब आपके बच्चों की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से हर बात के लिए दिल से सॉरी। और आपके बच्चों और आपकी बेटी की तरफ से हर बात के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। बच्चे नहीं कर पाते, बच्चे अभी इतने वो नहीं हो गए। और संगत जी, पता नहीं गुरुपा मुझे अमृत वेला क्यों नहीं जगा रहे, मुझे नहीं पता। अमृत वेला नहीं जगाते, मगर 4 बजे के बाद आँख ज़रूर खुलती है, तो 4:45 बजे, मतलब ऐसे टाइम पे आँख खुलती है, जो कि मैं नहीं समझती जब अमृत वेला होता है, क्योंकि दिन निकलने वाला होता है। 4 बजे तक तो अमृत वेला माना जाता है। और पता नहीं मेरी गुरुपा क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अलार्म लगाने की भी कोशिश करी, एक दिन उठ गई, दूसरे दिन टुडे का अलार्म लगा था, मैं देख नहीं पाई और वो बचा नहीं। गुरुपा प्लीज़ अमृत वेला की दात बख्शो। काफ़ी दिनों से गुरुपा अमृत वेला नहीं करवा पा रहे, क्योंकि एक मेरे अंदर एक डर सा बैठा हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है संगत जी पीछे। और अभी एक आंटी का सत्संग इतना डरावनी सुना था कि उस दिन से और मेरी नींद नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है वही सब पीछे मेरे कोई खड़ा हुआ है, मैं पूजा करती हूँ पीछे मेरे कोई खड़ा है। मैं बाथरूम, इतना मुझे रात को बाथरूम जाना पड़ता है, पता नहीं मुझे। जब मैं जगी रहती हूँ 2-2 3-3 बजे तक, 2:30 बजे तक मेरे को नींद नहीं आ रही। बहुत परेशान हूँ मैं संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को सुला दो। और बहुत मेरी आंखें थक रही हैं, मगर मुझे नींद नहीं आ रही। इतना डर बैठ गया मेरे अंदर, जबकि गुरुपा कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तू डरती क्यों? मगर मुझे नहीं पता, मुझे फिर भी इतना डर लग रहा है। दिल से सॉरी गुरुपा। और प्लीज़ आंटी अंकल ऐसे सत्संग मत डाला करा करो ग्रुप में, और सत्संग में कि शेयर मत करा करो जो कोई डर जाए। मेरे जैसी और भी संगत होंगी जो डरती होंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। कोई भी मैं ऐसी चीज़ें सुन लेती हूँ तो मैं बहुत डरती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना सत्संग था। मगर प्लीज़ ऐसे सत्संग मत डाला करा करो जो इंसान डर जाता है। और गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी का डर निकालो बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। दिल से शुक्राना कहना है, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको गुरुपा ब्लेस करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशियाँ देना, और पूरी साथ संगत को ब्लेस करना, उनके घर में खुशियाँ देना, उनकी अरदासें पूरी करना, जो उनके लिए ठीक हो वही करना, और स्वस्थ रखना। और जो भी हमारे लिए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनको ब्लेस करना गुरुपा, बहुत ब्लेस करना उनको। वो अपने जो भी उनका कर रहे हैं काम, उसमें उनको कामयाबी मिले देश की रक्षा के लिए। दिल से थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता।
सब कुछ देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, हर परेशानी को दूर करने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगी में आज का ये शुक्राना सत्संग रविवार का यानी कि संडे का आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त 2:05 हुए हैं, यानी कि संडे का दिन शुरू हो गया है। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं ये सत्संग शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज गुरु जी का हुक्म हुआ, जो सत्संग में गुरु जी ने बताया कि तो बहुत चिंता में है, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, सब तुझे टेंशन ही टेंशन है। तो इस सत्संग में बताए गए उपाय एक बार कर ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। और सत्संग को अनदेखा ना करी, इसमें तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि ये नींबू का रामबाण उपाय, यानी कि नींबू, तो गुरुजी बोलते हैं कि ये नींबू का रामबाण उपाय तो कर ले, तेरी सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक अब खत्म हो जाएगा। सत्संग में तेरी अर्जी सुन ली है मैंने, तो अनदेखा ना करी, सत्संग सुन। ये मौका बार बार नहीं मिलता। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने ये भी सत्संग मुझे फ्लैश आउट किया कि गुरुजी कहते हैं, जो तू मांग रही है और जो तुझे चाहिए, इतनी देर से मुझसे मांग रही थी, वो सब तुझे मिलने वाला है, वो सब तुझे मिलने वाला है। गुरुजी बोलते हैं, मैंने तेरी अर्जी सुन ली है, अब सत्संग सुन। इसमें इस सत्संग में ब्लेस्ड मंत्र जाप चल रहा है, तो इसको अनदेखा ना करी, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तेरे सब जवाब तुझे इस सत्संग में मिलेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं ये भी के 40 दिन मंत्र जाप कर, फिर देख तेरी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। गुरुजी, वैसे भी मैं मंत्र जाप रोज करता हूँ, तो जैसे आपकी आज्ञा मैं फिर से करूँगा 40 दिन। तो संगत जी, गुरु जी ये भी बोलते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में वसदा हूँ, तो तू शक क्यों करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस शुक्राना कर। और गुरु जी ने ये भी बोला कि मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दे। अब सब कुछ अच्छा ही होगा।
और गुरु जी बोलते हैं कि एक बहुत अच्छी खबर और रिजल्ट बहुत चंगा आओगा, तो शुक्राना कर ते सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी ये भी बोलते हैं कि संगत जी, मेरा डमरू बजने वाला है। तो जब गुरु जी का डमरू बजता है तो समझो कि कृपा हो गई। जा ऐश कर, गुरु जी बोलते हैं, कल्याण कीता। तो संगत जी, गुरु जी के आगे यही अरदास है मेरी कि मेरी सारे घर की और हम सब की परिवार की नेगेटिविटी और ये ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरु जी महाराज, और मुझे स्वस्थ तंदुरुस्त कीजिए, सब परिवार को स्वस्थ तंदुरुस्ती बख्शिए, ताकि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। गुरु जी महाराज, इतनी कृपा कीजिए, सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सब दूर कीजिए, सबके अंग संग साई रहिए, पूरी संगत का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज, और सब सर्वत का भला कीजिए। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। हम पापी हैं, पुलनहार हैं, भटकनहार कलयुगी जीव हैं। आप राखनहार हो, बख्शनहार हो, बख्श दीजिए, हमारे अवगुणों की तरफ ना जाइए। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। और गुरु जी महाराज, आपको पता है कि यानी कि हमने सुबह अपने जो हिल स्टेशन वाला घर है वहाँ जाना है, तो हमें सुख और शांति से आप ले जाइएगा, और वापस भी हम सुख और शांति से आएँ। और मैं तो सदा आपको अपने साथ लेके जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। आपने ही बोला है, जहाँ भी जाना मुझे लेके जाया कर अपने साथ। तो मेरा ये गुरु जी महाराज एक नियम बना है कि मैं आप जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ ले जाता हूँ, और जब भी जाता हूँ आपसे ये अरदास करता हूँ कि चलिए मेरे साथ। तो गुरु जी महाराज, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भी आप सफल कीजिएगा। और संगत जी, जो गुरु जी की कृपा से हमारा ऑर्डर हुआ है कोर्ट का, अभी मिला नहीं है, तो उसमें हमने एप्लीकेशन भी दे दी है हमारे लॉयर ने। तो जज साहब ने उसको मार्क करके नीचे भेज दिया है अपने स्टेनो के पास, और स्टेनो ने ही हमें वो सर्टिफाइड कॉपी देनी है ऑर्डर की। तो मे भी वो बोलते थे कि मंडे या ट्यूसडे को आपको ये ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। तो गुरु जी महाराज, अब भी आपसे यही अरदास करता हूँ। आप जी ने बोला था कि आखिरी फैसला तेरे हक में होगा, और बहुत चंगा रिजल्ट आऊगा, जो आप जी ने आज मुझे सत्संग में फ्लैश आउट किया। तो गुरु जी महाराज, फैसला हमारे हक में ही हो, और जो हमारे काम रुके हैं वो सारे आप एक एक करके करवा दीजिएगा, और इसके साथ जो दूसरा केस है रिलेटेड, उसका भी फैसला हमारे हक में हो जाए। इतनी मेहर कृपा कीजिएगा गुरु जी महाराज। सब कुछ आप जी ने करना, और आप जी के पाने हुक्म से ही सब कुछ होना है। तो आज के दिन मुझसे जो गलती, जो पाप हो गए हों, अनजाने में गलतियां मुझे मेरी माफ़ कर दीजिए। हम तो हैं ही गलतियों के पुतले, इंसान है ना, तो गलतियां कर बैठते हैं। तो गुरु जी महाराज अपने कर्म भी खराब कर देते हैं, तो कृपा कीजिएगा, बख्श दीजिएगा। आप बख्शन जोग हो, संगत जी बख्श दीजिएगा। ना किसी का बुरा करें, ना किसी का बुरा सोचें, और ना ही किसी को बुरा भला बोलें। इतनी मेहर कृपा रहमत कीजिएगा गुरु जी महाराज। और आगे जो हमारे काम रुके पड़े हैं
वो आप पूरे करवाइएगा, ताकि जो हमारी जो पेमेंट भी फंसी है तो वो भी हमें मिल जाए। तो गुरु जी महाराज सब कुछ आप जी की कृपा से ही होता है, और जो प्लानिंग आप करते हो वो हम समझ नहीं सकते, और जो आपकी टाइमिंग होती है गुरु जी महाराज, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो, हम नहीं समझ सकते। आपकी टाइमिंग जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, और परफेक्ट टाइमिंग पे आप जो हमारे फैसले आप करते हो, जो हमारे लिए अच्छा होता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करते हो आप। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। गुरु जी की आज्ञा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी महाराज। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। आंटी जी जो सत्संग हमारा शेयर करती हैं उनको भी और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिए, और ये सेवा सदा उनसे लेते रहिए। और मेरे जो सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए, गुरु जी महाराज कृपा कीजिएगा कि वो मेरे सारे सत्संग आप जी शेयर करवा दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यही विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना ओम मेरे गुरु जी नमः महाराज। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुपा। मैं आपकी बेटी महाराष्ट्र से आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, आज भारत की सेना ने जो शौर्य दिखाया है, आपके स्वरूप के रूप में आपने जो शक्ति दी है, भारतीय सारे अपने भारतीय यंत्र तंत्र से, और अपनी भारत की सरकार ने जिस तरह से उन्हें अवसर दिया और उन्हें इतने इक्विपमेंट्स दिए हैं कि उसके सामने दुश्मन पस्त हो गया है। और गुरुपाल, जिस तरह से आप पापियों को सजा दे रहे हैं, अच्छी तरह पूरा सबक सिखाए उन्हें। गुरुपा, ऐसी मंशा है भारत के सारे भारतवासियों की, सारे सनातनियों की, कि इस देश की रक्षा करें। और गुरुपा, जो जो कोई भी वो गलत चाल चल रहा है, उस पर उसे सबक सिखाएं, उस देश को सजा देवें, आतंकवादियों को सजा देवें। हे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं सभी संगतों से और सभी भारतवासियों से निवेदन करती हूँ कि वो लोग अपने सब सैनिकों और सैनिकों के परिवार के लिए दुआ करें, जिन परिवारों की माँओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने पतियों को युद्ध में भेजा है। उनको सपोर्ट करें, उनका मोरल बढ़ाएं, ऐसी सबको सद्बुद्धि देवें। हे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपकी शरण में हैं।
यह देश आपकी शरण में है। मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, हम सबको सद्बुद्धि देवें और काला बाजारी अनाज की कोई ना हो, क्योंकि अनाज की कमी अगर पड़ती है तो लोग भर भर के ना रखें और जितनी ज़रूरत है उतना ही लें, अनाज का वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसे में जो लोग गरीब लोग नहीं खरीद सकते उनको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो गुरुपा ऐसी सद्बुद्धि सभी को दें, पूरे देशवासियों को दें कि वे अनाज भर भर के ना रखें, और गुरुपा ऐसी सद्बुद्धि देवें कि जो कुछ जिनके आसपास जो भी सैनिक परिवार हैं, अगर अपने सैनिक परिवारों का मोरल बढ़ाएं, और सबसे ही हम सब एक परिवार हैं, हम एक देश हैं, एक परिवार हैं, एक समाज हैं, ऐसी सद्बुद्धि सबको देवें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है गुरुपा, आपकी शक्ति से, माता रानी की शक्ति से सबका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुपा, लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरुपा सदा सहाय। सबको सद्बुद्धि देवें कि अपने देश के साथ खड़े हों, विपक्ष को भी, विपक्ष के लोगों को भी सद्बुद्धि देवें कि अपने देश के साथ खड़े रहें और अपने देश के सैनिकों का, सरकार का मोरल बढ़ाएं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज, आप जी के हुजूर में पश्चाताप गुरु जी, माफीनामा मेरे महाराज। पिछले सारे जन्मों और इस जन्मों की जो पल पल हम आपका दिल दुखाते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं, उसके लिए माफी 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 गुरु जी। हे ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड में जिस भी जीव के प्रति, आत्मा के प्रति, प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रति हमसे किसी भी तरह का कुछ भी गलती, गुनाह, पाप होता है, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं मेरे महाराज। आप ही ने ये सब सोची बख्शी है गुरु जी महाराज। अब आप ही हाथ पकड़ के पार लंघा दो मेरे दाता। हे गुरु जी, मुझे, मेरे बेटे और मेरे पति देव के जो भी तन मन धन जन के प्रति किए हुए गलतियां, पाप, गुनाह हैं, उनको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो गुरु जी। हे गुरु महाराज, हाथ पर पकड़ के चलाते हो, जीना सिखाते हो दातार, टुकड़े भुलाते हो, गले से लगाते हो, मुस्कुराना सिखाते हो, शुक्राना सिखाते हो। कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस किस चीज का शुक्राना हम कर पाएंगे। आप पे तरस करके सब कुछ करवा लेते हो। हम निर्गुण में हारे को गुण नहीं, आप पे तरस पे हुई। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे महाराज, आपका शुक्राना मेरे बाबा। शुक्रिया 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 मेरे बाबा। लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। शुक्राना इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना। हे ब्रह्मांड नायक, आपके बनाए सारे ब्रह्मांड का शुक्राना।
तरह तरह से हमें संभालने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लाख खुशियाँ बादशाहियाँ मेरा सतगुरु नदर करे तो ही हम खुशियाँ मान सकते हैं, बादशाहियाँ मान सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरा संगत परिवार। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।